So let us chant Omkar 3 times, then we shall begin. Om. 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 Sai Ram. So today, before starting the class, as some of you will be knowing that today is the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel. This is called National Unity Day, राष्ट्रीय एकता दिवस, है ना? आपने टीवी पे देखा होगा किसी ने न्यूज में. Today is the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel, first Home Minister of the country, and he is known as Iron Man of India, Loh Purush. And Sardar Patel is known for making the India. Sardar Patel created India basically because before independence there were many princely states, and these all princely states were merged in one country because of the efforts of Sardar Patel. So near about 562 states were there before independence, princely states, and they were owned by kings or queens. So all these states were brought under one nation, that is India. So Sardar Patel is very strong politician, was very strong politician. So his birthday is celebrated as National Unity Day. So on his birthday, we have to take one oath. So I would like to all of you to open your videos and audios both, and let us take this oath. Sai Ram. So for a minute, all of you open your audios and videos so we can take this oath. Okay. Sai Ram. So all of you open your videos and audios so we can take this oath. Okay. So all of you please open your videos and audios both. You must be audible and visible both. Okay. So keep your hand like this as we keep while taking the oath. रखते हैं ना oath ceremony में क्या करते हैं? Keep your hand like this. And I will read and you have to repeat. मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने साथी देशवासियों के बीच इस संदेश को फैलाने के लिए भरसक प्रयत्न करूंगा मैं
शपथ। मैं यह शपथ मैं मैं ये ये शपथ अपने देश की अपने देश अपने की देश की एकता की भावना से एकता एकता की की भावना भावना से ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, जिसे से जिससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सरदार सरदार वल्लभ भाई वल्लभ पटेल की पटेल की दूरदर्शिता 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 एवं कार्यों को एवं एवं कार्य कार्य को संभव बनाया जा सका। संभव बनाया बनाया जा जा सका। सका। मैं 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 अपने देश की अपने अपने देश देश की की आंतरिक सुरक्षा आंतरिक आंतरिक सुरक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने के अपना अपना योगदान अपना अपना योगदान योगदान करने का भी करने का भी सत्यनिष्ठा से सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। संकल्प करता कल्प करता हूँ। जय हिंद। जय है। हिंद। Sign up. So this is the oath on the occasion of birthday of Sardar Vallabhbhai Patel, Iron Man of India, who created this modern India by merging the princely states, and he did many uh, historical work. He started first time Indian IAS services. Because of his efforts, all India services were started. So today is his birthday, and he was very much particular about national security, especially internal security. So we all take oath that we will um, take care of internal security of the country. Okay. So now come back to the topic. We are discussing about share capital. So let me share the screen so I can explain you in a better way. Okay. So we are discussing about issue of shares for cash. So when we issue the shares for cash, the value of shares is taken by company in some installments, and first stage when company take the money or value of shares, that is application. So we have already discussed the provisions of Companies Act and SEBI guidelines regarding application money. So Companies Act says what? What is the amount of application money? Sairam? Not less than 5% of face value. बताया था आपको, किसी को याद है क्या? Yes, sir. Application money should not be less than 5% of face value or as suggested by SEBI. As suggested by SEBI. These two options are given by Companies Act. So either it is 5%, otherwise it is suggested by SEBI. So suggested by SEBI, SEBI says not less than 25% of issue price. यहाँ फेस वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है इश्यू प्राइस. नॉट 25%, लेस देन 25% ऑफ इश्यू प्राइस. एम आई राइट?
सही राम समझ में आया क्या? Yes. ठीक है। सेकंड स्टेज वाज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। At this time, what is the allotment? I have discussed in detail. So, allotment can be done only if company has received amount equal to minimum subscription. That is, according to SEBI, %90 of issue price. No. Okay. If minimum subscription is not received, company has to return application money within 14 days from the date of closure of subscription list. Closure of subscription list. From this date, within 14 days, company has to return back and cannot go ahead. This issue will be cancelled. That prospectus will be cancelled. So allotment will be paid only if company has received amount equal to minimum subscription. So the term used by me, this is two words are there: opening of subscription list and closing of subscription list. Sorry, closing of subscription list. Two terms are there: opening and closing. This is same जैसे हम किसी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं जॉब के लिए तो उसमें एक लास्ट डेट देते हैं। देखा ना आपने कि बाय दिस डेट एप्लीकेशंस मस्ट बी सेंड ऑन और बिफोर दिस डेट, बाय दिस डेट। उस डेट तक हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ऐसे ही कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस निकालती है तो उसमें लिखती है कि योर एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ योर एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड बाय दिस डेट। इस तारीख तक अगर आपकी एप्लीकेशन आएंगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आएंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट डेट इज कॉल्ड एज क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, है ना, क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जैसे कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया 15 अक्टूबर को और उसमें लिखा था लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन इज 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर इज द क्लोजिंग डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। इसके बाद कंपनी सब्सक्रिप्शन या एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, दैट इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। On this date, company will see whether we have received applications for 90% of the issued shares or not. अगर नहीं हुआ तो within next 14 days, that means up to 14th November, company will return all amount which is received on the by way of applications. 14 दिन के अंदर वो सारा पैसा 14 दिन तक लौटाना पड़ेगा, है ना, 14 days कंपनी को सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। Otherwise there is a fine on directors or promoters of the company, so that must be returned back to the applicant. That's why this application money, as I said already discussed with you, application money is kept in a separate account called share application account. बताया था ना आपको किस अकाउंट में रखे उसको? share application account. It is not transferred to the share capital account. It is transferred to share capital account only after the allotment of shares. इतना क्लियर है आप लोग को भी? सही राम? हाँ भाई रिप्लाई करो, बोलो कुछ। पहला स्टेज हो गया हमारा एप्लीकेशन, दूसरा स्टेज हो गया अलॉटमेंट। ये मैं बता चुका हूँ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अलॉटमेंट। Applicant's status is changed just after the allotment. Applicant becomes shareholder.
है ना. This is the first change. And share application money becomes the part of share capital. Just after allotment, share application money is transferred to share capital account. So these are two implications of allotment. It makes an agreement between or contract between applicant and company, and the status of applicant is changed now, and he becomes a shareholder of the company, member of the company. And second, the application money received by the company, which is kept in share application account, now will be transferred to the share capital account. And third stage is the calls. So company can make maximum 3 calls. Company can make maximum 3 calls. Rules for each call is same. So what are the provisions of Companies Act regarding calls? First, it says that calls should be made according to the articles of the company. Whatever provisions company has made regarding the calls in its articles of association, then that should be followed. Calls should be made according to the provisions of articles of association. If company has not made its own articles of association, then company has to follow provisions of Companies Act given in table F. So it says there must be at least 1 month gap between 2 calls. 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आज पहली कॉल की 2 दिन बाद दूसरी कॉल कर दी. So in that condition, the shareholders may be in financial problem. So there must be at least 1 month gap between 2 calls. Number 2, at least 14 days time or notice. 14 days notice must be given, should be given. ठीक है, 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा आपको पेमेंट करने के लिए. ऐसा नहीं कि आज आपने नोटिस भेजा कल लास्ट डेट है पेमेंट करने की, ऐसा नहीं होगा. एटलीस्ट 14 डेज टाइम शुड बी गिवन. और तीसरा होता है कॉल्स शुड बी मेड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल शेयर्स ऑफ 1 कैटेगरी. एक कैटेगरी के जितने शेयर हैं उन सब पे एक ही कॉल होगा. जैसे एक कंपनी ने एक बार में 20,000 शेयर इशू किए, 20,000. कंपनी इशू 20,000 शेयर्स और उसमें इसका 3 रुपए का कॉल है, तो ये 3 रुपए की कॉल सारे 20,000 शेयर पे करेगी कंपनी एक बार में जो इशू किए थे. अब ऐसा नहीं है कि 10,000 शेयर पे तो उसने 4 रुपए की कॉल करी, बच्चे को 10,000 पर 3 रुपए की कॉल करी. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो कॉल शुड बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स ऑफ सेम कैटेगरी. If shares belong to 2 different categories, then amount of calls will be different or may be different. But in case of same category, the amount of call must be the same. So these are the provisions of Companies Act regarding. एक चीज और छूट गई, very important. The call money should not be more than 25% of the face value. ये बड़ा important है. Call money अगले पर लिखता हूँ इसको, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ. Call money should not be more than 25% of face value या नॉमिनल वैल्यू. जो शेयर की फेस वैल्यू है उसका 25% से ज्यादा पैसा एक कॉल पर नहीं मांग सकते आप. यानी 100 रुपए का शेयर है तो मैक्सिमम कॉल अमाउंट 25 रुपए हो सकता है आपका, 25 रुपए ज्यादा नहीं हो सकता.
So these are the provisions of Companies Act regarding calls. Is it clear? Sairam, Yes, sir. your response is very bad. आप लोग सब एक तो कैमरा बंद रखते हो, दूसरा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता, पता नहीं चलता क्या हो रहा है. ठीक है, अब आ जाइए. ये तो हो गया हमारा. मैंने बताया था आपको शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश एंड फॉर अदर देन कैश. अदर देन कैश की तो हम बाद में बात करेंगे, कि तो छोटा इशू है. उसमें दो ही कंडीशन है, इशू ऑफ शेयर्स टू द वेंडर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स टू द प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स. ठीक है, तो दो एंट्री का काम है. मेन क्वेश्चन जो होता है वो इसी का होता है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. So are you understanding, when shares are issued for cash, the value of a share may be taken in lump sum, है ना. दोबारा फिर लिखता हूँ उस सेम टॉपिक को. Okay, so this is the topic, issue of shares for cash. And in case of issue of shares for cash, the value of shares may be taken in lump sum or in installments. So this we have discussed. Installments का नाम हमने डिस्कस किया. Application, allotment and calls. इसमें मैक्सिमम 3 कॉल्स हो सकते हैं. ये समझ में आ गया सबको? कंपनी जो पैसा लेती है वो मैक्सिमम 3 कॉल्स में ले सकती है. इज इट क्लियर? यस सर. आप समझिए टर्म्स ऑफ इशू. टर्म्स ऑफ इशू. सो शेयर्स में बी इशूड नंबर ए एट पार, number B at premium. These are called terms of issue. So shares may be issued at par, at premium. एक दिन समझाया था मैंने आपको, अगर याद हो किसी को तो, है ना. If the shares are issued at a price equal to face value, then it is called issue of shares at par. If shares are issued at a price more than face value, then it is called इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम. जैसे यहाँ पर 100 रुपए का शेयर है, आपने 100 रुपए में इश्यू किया तो पार पे हो गया. यहाँ पर 100 रुपए का शेयर है, हमने इश्यू किया 125 में, तो 25 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए वो प्रीमियम हो गया. दिस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए प्रीमियम. ओके, क्लियर है? यस सर. अब इसमें पार में तो कोई नई चीज नहीं है, सेम अमाउंट आता है. प्रीमियम में क्या देखिए, issue of shares at a premium. ओके, इसका सेक्शन है 52(1). subsection 1. Section 52 subsection 1. So a company is free to issue its shares at a premium. No restriction on issue of shares at premium. Now companies are restricted to issue the shares at a discount, but companies can issue shares at a premium, and the amount received for premium will be credited to securities premium account. इसका अकाउंट होता है to securities premium account. This is not the part of capital. This is a capital profit. So this amount will be credited to a separate account, securities premium account or
सिक्योरिटीज प्रीमियम reserve account. Is it clear? So it will be credited to securities premium. It's a common account for both premium received on shares or premium received on debentures, because both are securities. So we use a common account that is called securities premium account or securities premium reserve account. Okay. This presentation in balance sheet securities premium reserve account is shown under the heading of equity and liabilities. अभी पढ़ेंगे बैलेंस शीट में समझ में आएगा. इक्विटी एंड लायबिलिटीज मेन हेडिंग आएगा आपका अंडर, इसलिए कोई इक्विटी हेडिंग नहीं है, अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ना. इसका मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में सब हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस. मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड एंड सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस. उसमें लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसके अंदर हम लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. सो दिस इज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड है ना. शेयर होल्डर्स फंड है ओनर्स फंड. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ये पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड. इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया सबको? आपको बार बार रिपीट नहीं करूंगा अभी. दो कंडीशन बताइए आपको इशू करने की. Yes, sir. Shares can be issued at par or shares can be issued at a premium. In par there is no difference of value, so no extra entry is needed. In case of premium we are charging extra amount than the face value. So this additional amount which is over and above the face value, that is called as securities premium. So this amount will be credited to a separate account called securities premium account. You can write securities premium reserve account. Both are allowed. Okay, and this is shown in the balance sheet in the liability side of the company. Liability side now is known as equity and liabilities. है ना, उसका नाम liability side नहीं है. 12th class में उसका नाम चेंज है कंपनी एक्ट में. उसका नाम है equities and liabilities. Under equities and liabilities there is a shareholders fund main heading, and under main heading of shareholders fund there is sub heading of reserve and surplus. So this is reserve, so it will be shown as a part of the reserve and surplus. Is it clear? Now the most important question of this whole company account is this: usage of securities premium. This is very important question for theory also. Usage of securities premium, ये तो आपको रटा होना चाहिए. This amount received by company as securities premium is not a normal income. बताया ना मैंने आपको, it's capital income, so it cannot be freely utilized by the company. It can be utilized only for the purposes suggested in Companies Act. तो जिस काम के लिए Companies Act ने परमिशन दी है उन्हीं काम के लिए इस सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट का कंपनी यूज कर सकती है. तो यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सेक्शन 52. याद रखना है 52 बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 52(2), ठीक है. 52(1) में तो उसने किस अकाउंट में लिखेंगे उसको वो दिखाया है कि शुड बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. 52(2) में लिखा है कि फॉर व्हाट पर्पसेस सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड. तो मैं लिख नहीं रहा हूं सर, आपकी बुक है तो देखो उसमें दिया है. पहला दिया है, लिख देता हूं. चलो, पहला इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स. Issuing fully paid bonus shares means this securities premium में से कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, पुराने शेयर होल्डर्स हैं, उनको शेयर्स दे सकती है बिना कुछ पैसा लिए. उनको बोलते हैं बोनस शेयर्स. सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग
fully paid bonus shares to members यानी existing shareholders. Members means existing shareholders, जो पहले से shareholders हैं उनको कंपनी बोनस शेयर्स दे सकती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी को बनाने के जो खर्चे होते हैं उनको कंपनी इसमें से राइट ऑफ कर सकती है। तीसरा हो सकता है राइटिंग ऑफ एयर एक्सपेंसेस और कमीशन एक्सपेंसेस और कमीशन और डिस्काउंट allowed on issue of shares है ना, और डिवेंचर्स यानी इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर्स है ना। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर दीजिए अब, बेसिकली डिवेंचर्स ही रह गया क्योंकि शेयर्स को तो अब डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती, लेकिन कमीशन हो सकता है। इशू ऑफ सिक्योरिटीज मींस शेयर्स और डिवेंचर्स, कमीशन तो दोनों हो सकता है। और ये आपका क्या बोले एक्सपेंसेस और कमीशन दोनों के हो सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट अकेला डिवेंचर्स को हो सकता है, तो इसको राइट ऑफ कर सकती है कंपनी। तो थर्ड यूज हो गया। फर्स्ट यूज है इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स, सेकंड यूज है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, थर्ड यूज है राइट ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। फोर्थ है पेमेंट ऑफ प्रीमियम payable on redemption of preference shares or debentures redeemable at premium। जैसे कंपनी शेयर्स इशू करती है प्रीमियम पे, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर सकती है जो रिपीवेबल एट प्रीमियम है। यानी कंपनी बोलती है कि हम पैसा लौटाएंगे तो प्रीमियम के साथ लौटाएंगे, यानी जितने का शेयर है जितने का डिबेंचर से ज्यादा लौटाएंगे उसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। सो इफ एनी सच प्रीमियम इज पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें कैटेगरी होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है या रिडीमेबल डिबेंचर है एंड इट इज रिडीमेबल एट प्रीमियम, so that amount of premium can be paid out of securities premium account। और लास्ट होता है बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक इज द न्यू प्रोविजन है ना, परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, उसको बोलते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। नॉर्मली कंपनीज आर नॉट अलाउड टू परचेज इट्स ओन इक्विटी शेयर्स, कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को परचेज नहीं कर सकती। बट इन कंपनीज एक्ट 2013 there is a provision, 13 से पहले ही शायद आ गया था, buyback of shares after satisfying certain conditions companies can purchase their own shares from the public। अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर सकती हैं, so उसको बोलते हैं buyback of shares। so this amount of securities premium can be utilized for buyback of shares। so these are the prescribed usage for which securities premium can be utilized। is it clear? इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 3 यूज दे दिए, विच आर द रिमेनिंग 2 यूजेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आपको सारे के सारे पांचों पता होना चाहिए कि कौन कौन से 5 यूज दिए हैं सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग यूज ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इन एडिशन टू दिस 5 फॉर नो अदर पर्पस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज। इसके अलावा और किसी काम के लिए इस पैसे का हम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब मैं अभी अकाउंटिंग पार्ट में आने से पहले एक चीज और समझ ले, से एंट्रीज करने में आसानी होगी, सब चीज क्लियर होती है, एक बार वो चीजें बदलनी नहीं पड़ेगी। इसलिए एक और चीज है वो देखते हैं हम लोग, वो क्या है समझो, इससे इशू वाला पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा। See what happens when company issues prospectus। What I said,
what we are discussing since beginning. Whenever company has to issue the shares, company issues a prospectus. Now this prospectus is clear to all of you. Again and again this is coming. Invitation to the public, advertisement. In this prospectus, company invites the applications. Through this prospectus, company invites the applications for its securities, means shares or debentures. So in this prospectus, company mentions the number of shares or debentures it is going to issue. Suppose a company XYZ Limited, this issues a prospectus inviting applications for 10,000 equity shares. इसने एक prospectus निकाला, advertisement निकाला कि we want to issue 10,000 equity shares of ₹100 each. 100 रुपए का एक शेयर है, ये हम इशू करना चाहते हैं. ठीक है, पेबल जो भी है रुपीज सपोज करो 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट एंड 20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. एक ही कॉल की इसने 20 रुपीज की, ये इसने एडवर्टाइजमेंट निकाला. हमारा बात का मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इससे है, इस वाले अमाउंट से है, इस नंबर से है. Now what is the possibility when this prospectus or advertisement will go to the public? ये जाएगा ना न्यूज़पेपर के थ्रू जाएगा या नेट पे आप डालेंगे, अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, कैसे भी पब्लिक को पहुंचना चाहिए. So when public will come to know about this issue of shares, what public will do? Public will apply for shares. यानी कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी. ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाहती है तो 10,000 की एप्लीकेशन आएंगी कंपनी के पास? सही राम? नो सर. नो सर. पॉसिबिलिटी क्या है? ना ज्यादा आ सकती है और कम भी आ सकती है. कम भी आ सकती है, ज्यादा भी. सो एक्चुअल एप्लीकेशन, एक्चुअल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, देखो तो अब हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे. इसको हम बोलते हैं, जो कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई है उसको हम बोलते हैं इशूड शेयर्स. क्या बोलेंगे इसको? इशूड शेयर्स. जिसके लिए हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया उसको हम बोलते हैं टेक्निकली इशूड शेयर. तो इशूड शेयर्स हमारा नंबर क्या है? 10,000 है. अब जो एप्लीकेशन आएंगे उनको बोलते हैं अप्लाइड शेयर्स. क्या बोलते हैं उनको? तो अप्लाइड शेयर्स में भी सेम वेरी रेयरली, बहुत मुश्किल कंडीशन में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सेम एग्जैक्ट नंबर आए. अदरवाइज तो क्या होगा, कम की शेयर एप्लीकेशन आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है. सेम की मान लो कम कंडीशन. तो पहला, दूसरा और तीसरा, 3 पॉसिबिलिटीज है इसमें. पहली पॉसिबिलिटी हमने मान ली कि हमारे पास 6,000 शेयर की एप्लीकेशन आई. दूसरी हमने मान ली 10,000 की एप्लीकेशन आ गई. तीसरी हमने मान ली 15,000 की एप्लीकेशन आ गई. ये पॉसिबल है कि नहीं है? सही राम? यस सर. पॉसिबल. ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है. इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. लिख लीजिए आप लोग चाहें तो. टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. जो पहली वाली कंडीशन है इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन. दूसरी वाली कंडीशन है फेयर सब्सक्रिप्शन और तीसरी वाली कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन, फेयर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. Is it clear? So see, Yes sir. if the number of shares applied is less than number of shares issued, आप चाहे तो लिख लीजिए definition. What is under subscription? If the number of shares applied is less than number of shares issued, it is called under subscription. Number of shares applied is less than number of shares issued, it is called as under subscription. Okay. Sairam? Yes sir. Second, if the number of shares issued, if the number of shares applied is same as the number of shares issued, that is called as fair subscription.
दोनों नंबर सेम है तो क्या होगा, फेयर सब्सक्रिप्शन है। 10,000 इशू किए, 10,000 का एप्लीकेशन आया, फेयर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। नंबर 3, if the number of shares applied is more than number of shares issued. If the number of shares applied is more than number of shares issued, that is called as over subscription. ये क्लियर? सही राम? Yes, Yes, sir. sir. So there are 3 possibilities when we invite applications by issuing the prospectus. The number of applications may be less than the issued shares. It may be the same as we issued, and it may be more than the number of issued shares. Now out of these 3, in first 2 conditions there is no problem. Problem क्या नहीं समझिए? Allotment issue. क्या बोलते हैं उसको? Allotment issues. So there are no allotment issues in case of first 2 condition. Condition number 1 में कोई problem नहीं है और कंडीशन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयर आर नो अलॉटमेंट इश्यूज इन दीज 2 कंडीशन, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन दोनों में कोई इश्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास शेयर कितने हैं? सही राम, शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 10,000. 10,000। और लोग कितना मांग रहे हैं पहली कंडीशन में? 6,000, 6,000। ठीक है। तो हम सबको शेयर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? सर दे सकते हैं। यस सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जैसे आपके पास 10 जॉब है, 10 जॉब के लिए आपने वैकेंसी निकाली और एप्लीकेशन 6 लोगों की आई, तो 6 को जॉब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ठीक है। अब दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास शेयर है 10,000 और पब्लिक ने एप्लीकेशन भी 10,000 की भेजी, तो सबको शेयर दे सकते हैं कि नहीं? यस सर। दे सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन में हमारे पास प्रॉब्लम है कि वी हैव ओनली 10,000 शेयर्स। शेयर्स तो हमारे पास 10,000 है, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 15,000 के लिए, तो क्या हम सब लोग को शेयर दे सकते हैं? नो सर। नहीं दे सकते, है ना। इसी में हमको वो जो मैंने टेक्निकल इशू समझाया था आपको कि प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन इनविटेशन इज क्या है? ऑफर टू मेक ए प्रोस्पेक्ट, ऑफर टू मेक ए प्रपोजल है, और जो एप्लीकेशन भेजते हैं वो प्रपोजल है। अब कंपनी के हाथ में चांस है कि वो कैसे एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। अब वो काम में आएगा, आपको समझ में है ना। अब किसका राइट है कि अलॉटमेंट किसको करे किसको नहीं करे? कंपनी का हाथ में है ना। उन्होंने तो क्या किया है, जो एप्लीकेशन आई है वो क्या प्रपोजल है। अब कंपनी इज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है कि कंपनी कैन एक्सेप्ट द प्रपोजल और कंपनी कैन रिजेक्ट द प्रपोजल। तो अगर कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो क्या मानते हैं कि कंपनी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल, और कंपनी अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको शेयर अलॉट नहीं करती है, इसका मतलब होता है कि कंपनी हैज रिजेक्टेड योर एप्लीकेशन। कंपनी हैज राइट टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर प्रपोजल, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते आप प्रपोजल को। ठीक है। इसलिए वो अब टेक्निकल जो मैंने समझाया था इसलिए समझाया था। तो अभी थर्ड कंडीशन की हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन see, allotment of shares is the discretion of directors. It is the right of directors. How to allot the shares? It is the discretion of directors. So in case of over subscription, directors of a company has 3 alternatives. जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे मैंने आपको बात की कि हमने इशूड शेयर थे 10,000 और अप्लाइड से आ गया 15,000, तो ये क्वेश्चन भी आता है थ्योरी में, व्हाट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस डायरेक्टर्स हैव इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, है ना। व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डायरेक्टर्स हैव regarding allotment of shares in case of over subscription. So directors have 3 alternatives or 3 choices regarding the allotment of share है। पहला है नंबर A, रिजेक्शन और रिजेक्टिंग
एडिशनल एप्लीकेशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 में से क्या करेंगे डायरेक्टर्स, 5,000 के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे और 10,000 जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको 10,000 का अलॉटमेंट कर देंगे। तो पहला ऑप्शन तो होगा रिजेक्टिंग एडिशनल एप्लीकेशंस। दूसरा होता है पार्शियल, और इसका कॉमन नाम है, पॉपुलर नेम है प्रो राटा और प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। पार्शियल, दैट इज प्रो राटा और प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे आपने अभी रेशो निकाला था ना, तो हमारा 10,000 हमने शेयर इश्यू किए और हमारे पास एप्लीकेशन आई 15,000, तो शेयर का रेशो क्या आ रहा है, 10:15 का रेशो आ रहा है और 1:1.5 का रेशो आ रहा है। इसको पॉइंट में रखने के बाद 10:15 रखते हैं, रेशो क्या है 10:15। तो इसमें डायरेक्टर्स क्या करेंगे, 15 शेयर में 10 शेयर इशू करेंगे, यानी इसने 30 शेयर इशू किया, अप्लाई किया होगा उसको 20 मिलेंगे, जिसने 15 इशू किया होगा उसको 10 मिलेंगे। इन दिस वे शेयर्स विल बी अलॉटेड टू ऑल एप्लीकेंट्स बट नो वन विल गेट फुल एंड नो वन विल रिजेक्टेड। किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी और किसी को सारे शेयर्स नहीं मिलेंगे, बट एवरीवन विल गेट द शेयर्स लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। इट क्लियर? सही रहा? यस सर। ठीक है, तो वो दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि सबको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दें, एक रेशियो निकाल लें नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड में और नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड में, और उसी प्रोपोर्शन में सारे लोग को। और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मींस रिजेक्टिंग सम एंड प्रो राटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग। आप लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए फिर आगे जाना पड़ेगा, यह लिख देता हूं आगे, अगला पेज लिखो की बात। थर्ड ऑप्शन क्या है, नंबर सी, रिजेक्टिंग सम एप्लीकेशंस एंड प्रो राटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, जो आपने फर्स्ट और सेकंड पढ़ा उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे 15,000 एप्लीकेशन आई तो उन्होंने क्या किया, 3,000 को तो रिजेक्ट कर दिया, 3,000 एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड। अब 12,000 जो बच गई, उस 12,000 में से 10,000 शेयर दे दिए, यानी रेशो आ गया 12:10 का रेशो बना लिया। जिसने 12 शेयर अप्लाई किए उसको 10 शेयर दे दिए। किसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, किसको देंगे, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर्स, नो वन कैन चैलेंज दिस। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आप पूछ नहीं सकते उनको, डायरेक्टर्स को बोल नहीं सकते कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया। दैट इज द 100% डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो वो जिसको देना चाहे दे सकते हैं, जिसका शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं। So these are three different options available to the directors in case of over subscription. Is it clear? यस सर। ठीक है, तो अभी टाइम शायद होने वाला है, कितना हो गया? हाँ हो गया लगभग। तो अभी तो हम अटेंडेंस ले लूँ मैं आपकी, तो जल्दी से अगली क्लास में आएंगे फिर। ओके, कौन कौन है इस क्लास में? आप बोलते जाओ, फटाफट मैं बोलता हूँ। यस बोलते हैं ना, जल्दी हो जाएगा। आदित्य काबरा नहीं है, ठीक है। अंजलि मिश्रा, यस सर। अंकिता साहू, यस सर। अनुराग, दीपांशी, यस सर। हर्षी, यस सर। ईशांश, यस सर। कार्तिक, यस सर। केशव, यस सर। मानवी, यस सर। अमन, यस नंदिनी, सर। नंदिनी नहीं, नंदिनी है, नीरज, नीरज नहीं है, नियति, नियति भी नहीं है, पलक नहीं है, प्रिया, पार्थ काबरा, पार्थ भी नहीं है, प्रियांशु, संध्या, यस सर। शरद, शरद नहीं है, श्रेष्ठा, यस सर। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नहीं है, ठीक है, उमंग,
यस सर। विकास और विश्वास। ठीक है, थैंक यू। यू कैन लीव नाउ। आफ्टर 5-7 मिनट्स वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम एंट्रीज पढ़ेंगे। ये हमारा लगभग थ्योरी का काम हो गया है, बस कॉल्स इन एरियाज और कॉल्स इन एडवांस बचा है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा उसमें। ठीक है।